Is the screen visible? Yes, sir. Okay, fine. So hope you all have gone through the lectures, video lectures that I have provided. Today we are going to discuss some point of context-free grammars. Okay, so let us start. We all know these are the four tuples for representing any grammar, isn't it? Finite non-empty set of variables is what? V. Finite non-empty set of terminal symbols is T. Set of production rules is P, and S belonging to V is the start symbol. Okay, if we talk about context free grammar, okay, then production is of the form this thing, alpha is rewritten as beta, where alpha belongs to V and beta belongs to star closure of this thing. Fine, true or not? Yes, sir. क्या है कोई सा भी जीरो और मोर combinations of variables and terminal can appear on the RHS of the production, but in LHS on left hand side what you are seeing, only one variable is going to appear. Okay, so let us consider one grammar. Fine, suppose we have a string like this. If you have been asked to prove that this string belongs to the language generated by this grammar, how you are going to do that? Or if we are able to derive the string from the starting symbol, then definitely we are going to say that this string belongs to the language generated by the grammar. Okay, so can we think of like this? This is suppose production 1, this is production 2, and this is production number 3. So let us start by using production number 2. Okay, we can write this thing, yes or no? Yes, sir. Next we can have this S may be substituted by SS. Okay, again this S may be substituted like this. Okay, by using production rule 2. Next, by using third production rule, you can have this thing. Again, by 2, you are going to have this thing. Again, by 3, you are going to have this thing. You can write here, but ultimately this transform to this. Okay,
So the string is derivable or not from the given production rules of the grammar? Yes or no? Yes, sir. So this grammar is nothing but the grammar for well balanced parentheses. Okay, so you can write it in your notebook. Suppose if the question asks about the grammar generating the strings of well balanced parentheses. Okay, clear है? Context free grammar का definition, derivation. Yes or no? Yes, sir. फाइन। इसको किसी और तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते थे क्या? जस्ट सी, सपोज S is rewritten as this thing. Again, S is rewritten as this thing. S derives. Next, we have substituted this thing. Next, now it derives. So ultimately, same thing has been derived. Yes or no? Yes, sir. But what has happened in this case? We are substituting the rightmost variable in each instance. अगर एक ही है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और यहाँ अगर बात करें क्या हो रहा है, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल्स सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। yes or no? Yes, sir. तो अगर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल सब्स्टिट्यूट हो हर एक सेंटेंशियल फॉर्म में, जो भी आपका डिराइवेशन है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, और सेंटेंशियल जो फॉर्म है, जो डेरिवेशन है, उसमें हर जगह राइट मोस्ट वेरिएबल अगर सब्स्टिट्यूट हो तो उसे क्या बोलते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट। यस और नो? Yes, sir. अगर इसी के डेरिवेशन ट्री की अगर बात की जाए, स्टार्टिंग विद द स्टार्ट सिंबल, आपने क्या यूज किया, दिस थिंग। अगेन, नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपने किया फाइन, दिस इज नथिंग बट योर डेरिवेशन ट्री और पास्ट ट्री। यील्ड की अगर बात करें तो लेफ्ट मोस्ट टू राइट मोस्ट omitting anything that contains null। तो यहां से आपने रीड करना शुरू किया, क्या रीड होगा सबसे पहले, ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगेन दिस थिंग, इसे रीड नहीं करना है, दिस थिंग, ओपनिंग, अगेन omitting this symbol, next, and
This one is the last thing. So this is nothing but yield of the tree. Okay. If you are having such kind of tree structure, तो क्या ये कहलाएगा? पार्शियल डेरिवेशन ट्री। चलिए क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। लेट G be a context-free grammar having productions S is rewritten as BB or AA. A is rewritten as B, BS or AAA, and B is rewritten as A or AS or BBB. Let W is equal to BB, AA, BA, BA. Find out leftmost derivation, rightmost derivation and the parse tree for this string small b। ये ध्यान से रखिए, जब भी हम लोग टर्मिनल सिंबल्स की बात कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, जो स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा? जीरो और मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ दो सिंबल्स। तो टर्मिनल सेट जब भी होगा तो यहाँ क्या होगा? दिस थिंग। वेरिएबल सेट की अगर बात करें तो एस ए पी, ये वेरिएबल्स हैं। एलएचएस पे आपको दिख रहा है। फाइन। एंड प्रोडक्शन रूल्स आर दिस। This is one production rule. S is rewritten as BB. Again, S is rewritten as A is production rule, and so on. S is the starting symbol. Okay. Now you are provided with this string. You have to find out leftmost derivation, rightmost derivation, and the parse tree. Okay. चलिए वंस अगेन देखते हैं हम लोग। जो स्ट्रिंग दिया जाता है उसके करेस्पॉन्डेंस में आपको क्या करना है? मैप करना है कि कहाँ से डेरिवेशन हो सकता है। फाइन। और यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल। चलिए देखते हैं। सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल। यहाँ देखिए स्टार्ट सिंबल के साथ क्या है? दो प्रोडक्शन रूल्स है ना, बी बी ए ए। अगर सपोज ये प्रोडक्शन रूल यूज करते तो ये स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रहा है? किस सिंबल से? यस, B, बी से। तो डायरेक्ट मैच तो नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये प्रोडक्शन रूल यूज करेंगे। ओके, सो सपोज you use this production rule, S is rewritten as BB. Now again you have these production rules for B. So you see here B is present, so just by mapping you are going to substitute. Okay, next if we are talking about leftmost derivation, तो इसमें leftmost वेरिएबल ये भी है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन डू, we have this A, so B B A B, so this B has been replaced with this A. Okay, next again A आना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? This production rules can be used, B B for this B, A A S, ये सब्स्टिट्यूट हुआ correspondingly this B। अगेन अगर मैप करें आप
तो बी बी ए यहां तक आपने ये स्ट्रिंग जनरेट कर ली। नेक्स्ट सिंबल आपको करना है वो एस से करना है, और अगेन यहाँ आपको क्या दिख रहा है, बी। ओके, सो अगेन यू आर गोइंग टू यूज दैट सेम प्रोडक्शन रूल। So P2A2 S is going to be replaced by PB. Next, यहाँ मैप करिए BA अगर सिंपल A से सब्स्टिट्यूट करते तो यही टर्मिनेट हो जाता, लेकिन you have to consider one more BA combination of that. So what you have to do, you have to substitute with AS. Next, BBAA BA S is going to replace by BB, and again this B is going to be replaced by BBAA BA B, and this B is going to be replaced by A. Just map, you have derived this thing, है ना? ऐसा ही किया है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। Yes, sir. चलिए राइट मोस्ट डेरिवेशन की बात करते हैं। स्टार्ट तो वहां से रहेगा, जब एक ही वेरिएबल हो तो आपका लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट नहीं काम करता है। सपोज you have used this production, B is rewritten as BB. So अब यहाँ से चेंज आना शुरू। Now you have to consider this B because we are talking about rightmost derivation. Okay, so B के करस्पॉन्डेंस में तो अब आपको क्या करना है, अंत वाले पोर्शन की बात करनी है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डेंस में हम लोग देखेंगे बी बी बी, इस बी को हम एक ए के लिए अगर छोड़ दें तो उसके बाद वाले सीक्वेंस को जो है वो हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या है, ए बी। तो ए के करस्पॉन्डेंस में आपके पास दो प्रोडक्शन रूल थे, एक ए तो करस्पॉन्डेंस में इसके हो जाएगा, लेकिन दूसरे ए की बात करें तो क्या है, रिपीटेशन में हम लोग ले सकते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए एस। नाउ अगेन राइट मोस्ट वेरिएबल को ये बात करनी है, दिस एस, सो बी 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 ए एस, एस रिप्लेस किससे होगा, बी बी से, बिकॉज बी ए इस तरह का फॉर्मेट है। ओके, नेक्स्ट अगेन बी 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 ए बी, you have to repeat this sequence, so again as rightmost variable this s, so b b b a b a, and this s is again going to replace by b b. Next you can see here a b a b a, so you have obtained this sequence a b a b, so this b is going to replace by the single a, rightmost derivation b b b a b a b a. Now think of this b, you have one a here, so this b is going to be replaced by that a. So in this manner you have obtained the rightmost derivation in which at every place the rightmost variable is being replaced. Fine. So I think leftmost derivation and rightmost derivation का definition clear है। Yes. पास्ट ट्री बनाना है तो सिंपल जो आपने डेरिवेशन किया उसको इस तरह से लिख देना है। सपोज वी आर कंसिडरिंग LMD, so S is rewritten as BB, next B B B, fine, next this B is being replaced by A in this sequence, ES,
again B, B, next A, S, next B, B, and this is going to be replaced by A. So you can get the yield of this tree. This is nothing but B square A square BA. फाइन, पास्ट ट्री भी बन गया. यस और नो फैन. बट एटलीस्ट एक स्ट्रिंग ऐसा होना चाहिए, है ना, जिसके लिए दो या दो से ज्यादा डेरिवेशन ट्री आपके उपलब्ध हो. फाइन, जस्ट राइट डाउन अ क्वेश्चन. फाइंड आउट whether the grammar having production S is rewritten as a क्वेश्चन आया हुआ है ए बी और ए बी. A is rewritten as AAB or A. B is rewritten as ABB or B. Is ambiguous or not. ठीक है. जो डिफिनेशन आपने बताया उसे डिफिनेशन पे वर्क करके देखिए ये एम्बिगुअस है या नहीं. कितने वेरिएबल्स हैं? 2 variables. 3 variables S, A and B. Terminal symbols A and B. B. Okay. So you have to identify at least one W belonging to T star for which two or more derivation trees are available to prove that this grammar is ambiguous. तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको जस्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग देखना है कि क्या उसके लिए कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि नहीं. तो यहाँ पे आप मुझे बताइए whether this string is part of the language or not generated by this grammar. Yes, Yes. है ना. हाँ सर. Yes. Yes, sir. क्योंकि S is rewritten as AB direct production है, so we can say that S derives AB and this is the condition for a string to be part of the language generated by that grammar. ठीक है. तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्या इसको एक या एक से ज्यादा तरीके से आप डिराइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको चेक करना था. कर रहा. ठीक है. तो हम लोग कह सकते हैं ना कि S derives AB. ठीक. एंड A यहाँ पे B क्या है, इट कैन बी रीरिटन एज B. Small. So you are deriving in this way also and in this way also. तो derivation tree की अगर बात करें, this thing there exists a string for which you are having two LMD or two derivation trees for the same string. That's why this grammar is this string is
ambiguous, and hence the grammar G is ambiguous. Okay, clear है ना? Yes, sir. Now, one of the important question. Consider one regular expression. Okay, क्या कह रहा है ये रेगुलर एक्सप्रेशन? Who can define? Any number of A or B followed by A followed by any number of A or B. Very good. Now the question is, write down, design a CFG for this regular expression. क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. आपको क्या करना है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग है उनको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि इस लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग हो सकते हैं. फाइन. अगर सिंपल ये रहता एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, ठीक है, तो क्या पार्ट हो सकता था? एम्प्टी स्ट्रिंग पार्ट हो सकता था लैंग्वेज का. ए हो सकता था, बी हो सकता था, बी ए हो सकता था, ए हो सकता था, ए बी, ए बी बी एंड सो ऑन. ऐसी चीजें हो सकती थी ना? Yes, ये sir. है ना? और इसके करेस्पॉन्डेंस में अगर ग्रामर की बात होती तो एप्सिलॉन के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए ये प्रोडक्शन रखना पड़ता है. यस और नो? Yes, sir. सिंपल एक ए रहता अगर, तो एस इज रीरिटन एज ए लिखते हैं. ट्रू और नॉट? Yes, sir. True. True. और सिंपल एक भी रहता तो इस तरह से लिखते हैं. Yes, sir. लेकिन कई सारे ए जा सकते हैं, कई सारे बी जा सकते हैं एक साथ में, तो मतलब क्या है, रिपीटेशन होना चाहिए. अब आप देखिए, ये तीनों एक ही के टर्म में हमने लिखा. S is rewritten as epsilon, S is rewritten as AS, S is rewritten as BS. So suppose if you want to derive BA, so you can think of S is rewritten as BS, again S is rewritten as AS, and this thing. So ultimately you are deriving this thing. So any combination of A or B including 0, you can have these many production and you can get the desired result. Okay. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ गई. क्या है? ए होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट ये जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की बात करेंगे तो ए होगा, इधर एप्सिलॉन आ गया, इधर एप्सिलॉन आ गया. ओके, या फिर ए हो सकता है, बी ए हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं. ट्रू और नॉट?
यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो जो थोड़ी देर पहले हमने कंस्ट्रक्ट देखा, उसके कंस्ट्रक्ट को यूज करते हुए यहाँ पर सोचिए क्या कर सकते हैं आप। जस्ट गिव इट अ थॉट। एनीवन? सर सबसे पहले एस इज री रिटर्न एज ए लिख सकते हैं। ए ए डिराइव करके देखिए, आपके पास स्ट्रिंग तो है ना? यस सर। है ना? तो एक लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने वाले कई सारे ग्रामर हो सकते हैं। जस्ट यू हैव टू थिंक दैट ओके, if I am writing these production are going to produce the desired strings. चलिए देखते हैं इसको। जैसा कि मोना जी ने बोला कि ए रख देते हैं, ठीक है। तो ए अगर एस इज री रिटन ए रहा तो ये पोर्शन तो कवर हो गया, है ना? सर एएस और बीएस भी रख। ए एस और बी एस भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली रखेंगे एस के टर्म में तो रिपीटेशन उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि ए केवल यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार ही लाना है, उसके बाद ये एप्सिलॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्ट आपने बनाया फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, इसको हम लोग किसी अन्य वेरिएबल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए प्लस बी स्टार क्लोजर की मैपिंग, ए प्लस बी स्टार क्लोजर की मैपिंग। ओके, सो कैन वी थिंक ऑफ दिस introducing a new variable in which you are going to have the productions as, जो हम लोगों ने यहाँ बात की, ए बी एंड एप्सिलॉन। वेरीफाई करिए। जस्ट ये जो डिस्कशन था इसको हम लोगों ने यहाँ यूज कर लिया। ये स्टार्टिंग में भी जीरो और मोर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों सिंबल्स फिक्स हैं, इसको एज इट इज रखा। अब करेस्पॉन्डिंगली मान लीजिए हम केवल इसकी बात करें, ऐसे डिराइव हो सकता है ना, एस इज री रिटेन, जो पहला प्रोडक्शन है इसको हम लोग यहाँ डेरिवेशन में यूज करेंगे। ए अगेन these three are alternatives available for a, so you are going to use like this, a this thing, a epsilon, so you are deriving this thing। क्लियर है? यस सर, नो? सो आपको सबसे पहले स्ट्रिंग के टर्म में सोचना है और उसके बाद जो है इसकी बात करनी है। फाइन। सो क्या क्या डिस्कशन हुआ अभी तक? Who is going to repeat? So left derivation tree, right derivation tree, ambiguous grammar, and the production of this.
लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, पास्ट ट्री, सिंटैक्स ट्री या डेरिवेशन ट्री, पार्शियल डेरिवेशन ट्री, यील्ड ऑफ अ ट्री, व्हाट डू मीन बाय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। एम्बिग्युइटी कैसे सिद्ध करते हैं आपको, अगर सारे जो ग्रामर्स हैं जो कि एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं वो सब के सब एम्बिगुअस हो, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। ओके, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डेंस में अगर आपको सीएफजी बनाना है, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द स्ट्रिंग्स किस तरह से जनरेट हो रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डेंस में आपको क्या करना है, ग्रामर्स को जो प्रोडक्शन है उसको लिख देना है। और हमेशा जब भी आप इस तरह से प्रोडक्शन लिखेंगे तो 4 टपल रिप्रेजेंटेशन में अवश्य करेंगे। फाइन, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द 4 टपल। ओके, क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो जो मैंने आपको सीएनएफ, जीएनएफ, यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्रामर्स की जो लेक्चर शेयर किए हैं वो आपको पूरे देख लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के थ्रू उसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सबको मिला हुआ है ना, देखा है कि नहीं सबने लिंक? यस सर। तो बेसिकली नल प्रोडक्शन, नलेबल वेरिएबल किसको कहते हैं, यूनिट प्रोडक्शन किसको कहते हैं, जो भी सिंबल्स डायरेक्टली डिराइव हो रहे हैं स्टार्टिंग सिंबल से उसको क्या कहा जाता है, किस तरह से उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ग्रीबक नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये आपके नोटबुक पे होना चाहिए। ओके, और एट द लास्ट जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो आपकी मैं मार्किंग करूंगा, आपका जो नोटबुक मैंने प्रारंभ से ही बोला है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई हैव स्टेटेड कि ऑल द थिंग्स मस्ट बी इन योर नोटबुक। तो फाइनल असेसमेंट एक बार मैं उसको भी देखूंगा ऑल नंबर वाइज बिफोर योर एग्जाम। ओके, सर एग्जाम्स कब से होंगे सर? ये आइडिया नहीं है फॉर द टाइमिंग, केवल आपके फॉर्म फिलअप की बात हुई है। ओके, सर तो हाँ सर, सर इसी सर जून में ही होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जून में ही मोस्ट लाइकली है। ओके सर। ओके, यस। ये चीज क्लियर है ना, यहाँ तक जो भी चीजें हुई? जी सर। एक बार फिर से वीडियोस में देख लीजिएगा जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कोरिलेट कर पाएंगे फिर आप। ओके, ओके सर। अटेंडेंस बना लीजिए, लिंक मैंने शेयर किया था। अटेंडेंस बनाकर सर एक बार फिर से ओके